हेलो एंड वेलकम टू 24/7। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, this year 2022 has been concluded. Now the next point that comes is the recruitment cycle for the fair 2023 will start in the upcoming year 2023. So normally it comes, previously it came in January, again it came in January too. So January February is the time when we expect the exam notification for this examination. So now when we talk about the further details of RBI grade B, what should be my approach towards RBI grade B, and what is it about this examination? What is the exam pattern for the examination? And if I'm looking forward to RBI grade B, then what is that particular thing I need to keep in mind if I'm just about to start my preparation? कितने सारे questions हैं जो हमें कहीं ना कहीं tickle करते हैं when we are preparing for the RBI grade B examination, and you deserve to know the answers for that. And at the same time, if you haven't asked these questions to yourself, then you need to start asking these questions, because the examination is all about answering the questions correctly. So before starting with your process, you need to know what is exactly RBI grade B, what is exactly what you can do in terms of preparing for this examination, what is the scope of this particular position, what is the pay scale, what is the motivation that you need to look forward to when you are preparing for RBI grade B. मतलब कितने सारे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए आज इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम समझते हैं व्हाट इज अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन दैट आई नीड टू नो इफ आई एम एन आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 की, तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, व्हाई आर वी गिविंग दिस एग्जामिनेशन? बिकॉज दिस इज द प्लेस आई वांट टू बी, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गो विद द ऑफिसर ग्रेड पोजीशन। क्यों जाना कहीं और? मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑफिसर पोजीशन से अपनी शुरुआत करूँ, दैट टू एट एन अर्ली एज, बिकॉज देन आई नो माई फ्यूचर इज completely secured and I can look forward to a lot in the upcoming time period. Isn't it right? So that means this is the place where many of you are looking forward to. That's RBI, Reserve Bank of India, हमारे कंट्री का एपेक्स बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो बैंकर्स का बैंक है, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी संभालता है, एक ऐसा बैंक जो सारी बैंकिंग को रेगुलेट करता है, हमारी करेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉरेक्स के लिए भी ये लोग देखते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई रेगुलेट करता है और उसको संभालता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे कंट्री की करेंसीज को, और कितनी जगहों पर इसका इम्पॉर्टेंट स्टैंड है जिसके कारण हमारी इकॉनमी चलती है। बिकॉज जो ब्लड लाइन ऑफ द इकॉनमी है, द ब्लड इज द मनी एंड दैट मनी इज पम्प्ड बाय आरबीआई, right? So that means when we look forward to the RBI grade B examination, this is where you land up once you clear this examination. Now let's look forward to the next point. At least ये तो बेस की बात हो गई ना। अब अगली बात आती है, what do you find if you look forward to the official notification? One of the basic things that they give in the notification is build your nation, build your career. It says that the life with the RBI is not just another career, it's a commitment to serve the nation, where your decision makes an impact on the way the economy and the financial sector of the country evolves. यानी अगर आप RBI grade B की position के लिए apply कर रहे हैं and you are actually looking forward to it, once you clear this examination, this is where it's not gonna build your career only, लेकिन आप nation building में भी एक अपनी तरफ से contribution रख रहे हैं, एक ऐसी contribution जहाँ पर आप फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारा है इसके अंदर आपका भी एक योगदान या आपकी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो दैट्स अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ये तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, जब भी आप नोटिफिकेशन देखते हैं, जितने मर्जी अभी पिछले कुछ सालों से, तो जब से इसकी जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे ना, उसमें सबसे पहले आपको ये दिखेगा। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी तो कहानी हमें पता होनी चाहिए ना। व्हाट इज इट अबाउट द आरबीआई दैट वी नीड टू नो? नंबर वन, इट वाज सेट अप इन 1935, way before the time period that when India has got its independence. उससे पहले ही the RBI was set up. The RBI grade B examination is basically a proof that India has been working on its economy from the point of view of RBI from such a long period of time. यानी 1935 April 1 को ये बना था, और उसके साथ में it is one of the few central banks to document its institutional history. इसके institutional history ही आपको different volumes में मिल जाती है, जिसकी information आपको RBI की official website पर भी मिल जाएगी. So this
इज वेयर दे स्पेसिफाई अबाउट, देयर आर ओवरऑल 3 to 4 मॉड्यूल्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं इनकी हिस्ट्री के, जहाँ पर आपको आरबीआई का पूरा उसका बनने से लेकर अब तक का उन्होंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। दैट मीन्स इसने अपनी हिस्ट्री को भी संभाल कर रखा है। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू, अगर मैं आरबीआई में जानना चाहती हूँ, आई हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स अबाउट आरबीआई, आई हैव हर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स अबाउट आरबीआई, एंड नाउ आई एम फीलिंग कि मुझे भी आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिसर बनना है, मैं आरबीआई ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आरबीआई ज्वाइन करने के लिए फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज है आरबीआई में एंटर करने के लिए, एक ग्रेड बी ऑफिसर के तौर पर, और दूसरा आपके पास होता है एक आरबीआई असिस्टेंट के तौर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों जो एग्जामिनेशन है ये आसपास में ही होते हैं। इसका जो पेपर होता है वो काफ़ी हद तक आपका जो आईबीपीएस के लेवल के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसके आसपास का ही बनता है, थोड़ा सा हायर हो सकता है, बट आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और उसी के साथ में कंडक्ट होता है आरबीआई ग्रेड बी हर साल एनुअली। दे आर इन डायर नीड ऑफ मोर एंड मोर पीपल, competitive and very efficient people who are able to crack this examination and are able to get through these examinations and looking forward to RBI. Now let's look forward to the next point. आरबीआई ग्रेड बी की जो रिक्रूटमेंट थी 2022 की, उसमें क्या रहा था। जब हम आरबीआई ग्रेड बी 2022 को देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने आरबीआई की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है कि जो आरबीआई ग्रेड बी है वो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो आरबीआई कंडक्ट करवाता है, दैट इज कंडक्टेड एनुअली, यानी हर साल ये कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई की जो सैलरी है इट इज एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव सैलरी, इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही मोर देन 1 लाख है, जहाँ पर हर एस्पिरेंट को लगता है कि नहीं दिस इज अ जॉब प्रोफाइल। देखिए जब ना आप इसका जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी प्लस आप जो इसके पर्क्स को ऐड करते हैं, इट इज above 16 लाख एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास एक प्लस पॉइंट है ना, कुछ है जहाँ पर आपको ना कि सिर्फ एक ग्रेड बी ऑफिसर कहलाने की बात आती है, आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स तो पूरी हो रही है, आपकी मॉनेटरी नीड्स के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा आपको ऐसा मिल रहा है कि फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज, क्या आप उतनी मेहनत करने को तैयार हैं जो आरबीआई ग्रेड बी मांगता है? Now that is what you need to look forward to. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसके मेन रीजंस यही है कि दिस इज अ जॉब विच ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, इट इज़ रिस्पेक्टफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ द इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल चीज़ आ जाती है। आरबीआई ग्रेड बी की जो जॉब्स निकलती हैं, आरबीआई ग्रेड बी जो 2022 की जो नोटिफिकेशन निकली है उसके अंदर इस बार क्या आया था, उसमें आपके पास 3 पोस्ट थी, वन इज जर्नलिस्ट, DEPR एंड DSIM। उनके 3 डिफरेंट लेवल्स की पोस्ट निकली थी फॉर द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर असिस्टेंट। जो आपके पास आरबीआई ग्रेड बी का जो ऑफिसर है उसी की जो है वो आपके पास ये 3 लेवल जॉब्स आई हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। अगर मैं एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, व्हाट इज अ जॉब प्रोफाइल, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या करता है एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, ये हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। सो उसको समझते हैं। जब हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इनके पास बहुत सारे फंक्शंस एक साथ जुड़ते हैं। यानी एक इनका काम रहता है रेगुलेशन, सुपरविजन, एनफोर्समेंट का, यानी ये लोग मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीज़ों को देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को ये देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को, फॉरेक्स के अंदर भी एक रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर को काम करना होता है। साथ ही साथ ये बैंकर्स बैंक भी है, यानी एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो मेन इंटरेक्शन है वो ब्रांच मैनेजर्स या आपके जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनकी बजाय दे आर मीटिंग द टॉप हेड्स ऑफ द बैंक्स। हर बैंक का जो टॉप लेवल हेड्स होते हैं ये उनके साथ में जुड़ते हैं, बिकॉज बैंकिंग की पॉलिसीज के अंदर इनका भी तो एक वर्किंग रहता है। दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ द रिसर्चेस एंड जो इनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है या बाकी सब उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें इनकी वर्किंग होती है, उसके लिए ये कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द वेरियस बैंक्स। सो वो भी इनका रहता है कि यानी बैंकिंग, पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और करेंसी मैनेजमेंट का भी ये लोग देखते हैं। पिछले कुछ समय में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इनएविटेबल सिचुएशन हो चुकी है, उसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपको रूरल एरिया के अंदर भी पहुंचना, रूरल एरिया के अंदर पहुंचने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अडेप्टेबल बनाना होगा, उसको चीप बनाना होगा ताकि लोग उस तक पहुँच सके और उसका इस्तेमाल कर सके। एक तरफ इकॉनमी उससे बिल्डअप कर रही है और दूसरी तरफ
आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो बैंक्स जो हैं वो बैंक्स के अंदर और ज़्यादा अच्छे से उनकी रीच बढ़ा सकें, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में रिसर्च और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हमारे कंट्री की हर साल बनती है, उनको कंसिडर करते हुए ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सब ऑप्शंस के साथ में हमारे पास कौन कौन से रिपरक्यूशंस हो सकती हैं, या हम लोग इन्फ्लुएंसेस निकालते रहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे कंट्री में कैसे लाई जा सकती है। डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी से लेकर जो भी हमारे कंट्री के अंदर हर बार इकॉनमी में जो भी चेंजेस आई जा रहे हैं, उनको लेकर चलना, उनकी रिसर्चेस करना। देन गवर्नेंस, एचआर एंड सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विस। देखिए, बात ये आ जाती है कि इन सब एरियाज़ को देखने की भी ज़रूरत होती है। जो आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के पास में एक सुपरविजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो रहता है, बिकॉज वो अब एक ग्रेड बी ऑफिसर है। एक एज एन ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनको आपको रेगुलेट भी करना है, उनकी वर्किंग भी आपको देखनी है, राइट। सो ये आया आपका आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर का जो उनकी वर्किंग रहती है। देन सर्विस कंडीशंस या अदर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ हैं? देखिए, जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, द हार्डकोर रियलिटी ऑफ आरबीआई इज कि आरबीआई की ये जो जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल के साथ में द सर्विस कंडीशंस, यहाँ पर आपको मोनोटनी नहीं दिखेगी। दिस जॉब प्रोफाइल इज समथिंग जो आपको एक बैलेंस्ड वर्किंग देती है। हाउ? बिकॉज यू आर वर्किंग 5 days a week, आपका एक डिफाइंड वर्क कल्चर है, आपका डिफाइंड वर्किंग कंडीशंस है। आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, यू आर नॉट ओनली गेटिंग अ पर्टिकुलर जॉब जहाँ पर ना आपके पास में पार है, आपके पास में ये ऑप्शन भी है कि आपको बस मोनोटनी नहीं होगी। द इकॉनमी इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे, यानी आपके पास में जो हमारे कंट्री के अंदर जितने भी एवोल्यूशन चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम इवॉल्व कर ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया नया कर ही जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी से कभी हिट हो रही है, कभी बाहर कंट्री से जो चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को आरबीआई ग्रेड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीइंग एन ऑफिसर यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपका भी वहाँ पर एक योगदान रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो वहाँ पर आपके पास ना एक आपकी सर्विस कंडीशंस की अगर बात करते हैं, यू आर वर्किंग फॉर आरबीआई, वन ऑफ द strongest regulatory bodies and we can look forward to being the apex back of the country. That means वहाँ की service conditions, organization का climate या से culture जो है, it is one of the healthiest climates of cultures that you can look forward to. Along with that, आपके पास career prospects क्या हैं? बहुत से ऐसे RBI grade B officers हैं, as soon as they are done with their jobs in terms of the RBI, once they are retiring them, तो उस time पर once at the time of retirement they get the opportunities to work for other organizations, which is definitely the top level banks. Banks के अंदर they become the directors और उनके आगे इनके senior level पर जो managers के executives की requirement होती हैं वो fulfill करते हैं यही RBI grade B के officers, क्योंकि आरबीआई में अगर आप कुछ साल निकाल चुके हैं और आप अपनी प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट को भी देखते चल रहे हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे और हाई जाते रहते हैं। आपको इकॉनमी का पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी इकॉनमी का आइडिया होने लगता है। तो उतना जब आप ब्रॉडन अप हो चुके हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास आपका करियर प्रॉस्पेक्ट जो है, अगर आरबीआई से आप मूव आउट कहीं और भी मूव करने का देखते हैं तो वो भी आरबीआई ही आपको प्रोवाइड करवा रहा है। बिकॉज अगेन इतनी प्रेस्टिजियस जॉब में जा रहे हैं कि वहाँ पर आपको वो स्ट्रेस देने वाली बात ही नहीं आती, isn't it? So, ये है हमारी इसके बारे में। चलो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। When we look forward to this particular job profile, इसके ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ना इनिशियली जो स्टार्टिंग पे है ये उनकी बेसिक पे 55,200 पर मंथ के आपके स्केल से शुरू हो जाती है इन द पे स्केल ऑफ 55,200। उसके बाद आपका इंक्रीज होगा 2850 का फॉर 9 years। देन आप पहुंच जाएंगे 80,850 पर। देन आपके पास आ जाएगा 2850 का इंक्रीज होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years। फिर 86 आप आ जाएंगे 86,550 पर। देन 3300 फॉर 4 years वहां पर आपका इंक्रीमेंट रहेगा। फिर आएगा 99,750, दैट इज फॉर 16 years। ये एप्लीकेबल होता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फॉर आरबीआई ग्रेड बी पोजीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल एज वेल। कैन यू लुक फॉरवर्ड टू ओनली द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर? आप ग्रेड बी पर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है और ग्रोथ का भी, आपके पास पूरा एरिया खुलकर आता है। इफ आई एम वर्किंग फॉर आरबीआई देन वाई नॉट लुक फॉरवर्ड टू एन एरिया जहाँ पर और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकूँ, मैं कर सकती हूँ ना। तो वही चीज़ें अब हम बात करेंगे इसके प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट से भी। चलिए लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। बट बिफोर दैट आपका जो पे स्केल होता है इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 16 to 18, उसके ऊपर ही अभी आपका इसका प्लस चल रहा है। साथ में जो इसका पे स्केल होता है, पे स्केल के साथ में ही तो बेसिक पे की बात की, इसका जो पे स्केल है अगर आप वैसे देखोगे ना तो उसके साथ में ही यू गेट डीए, यू गेट लोकल अलाउंसेस, यू गेट एचआरए, यू गेट फैमिली अलाउंस। आपको उसके जो रिगार्डिंग मिलता है आपको
यू गेट इंसेंटिव्स और साथ में ना आपको एडवांसेस भी मिलते हैं अगर आप अपने घर के लिए कुछ परचेज करना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी यू गेट अ लैपटॉप एज वेल. आप अपने लैपटॉप या कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडवांसेस भी मिलते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ओनली. आपकी पढ़ाई का जो आगे इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ फर्दर वो भी आपके पास यहाँ आता है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इनिशियल इमोल्यूमेंट्स अगर आप देख रहे हैं, दिस इज एज पर 2022 दैट आई एम टेलिंग यू. एवरी ईयर इट इंक्रीजेस, यानी अब यहाँ पर वो दिया हुआ है 1,08,404, ये हर साल बढ़ता ही है. सो ये आपको ध्यान में रखना है. और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो होते हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि देखिए आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ना वो कुछ ऐसी है जहाँ पर ना आपका जो आपकी पोस्टिंग्स आती हैं वो अच्छी जगहों पर ही आएंगी, यानी आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ ही रहने वाले हैं थ्रू आउट योर लाइफ. आपका जहाँ पर आरबीआई का जो ऑफिसेज होंगे आपकी पोजीशन वहीं पर आएगी, आपकी रिक्वायरमेंट वहीं पर होगी. तो अगर आप उन एरियाज़ में जाते हैं तो आपके पास पूरा ग्रोथ का एक सिनेरियो बनकर आता है ना कि आपको कंफर्ट मिलेगा वहाँ लाइफ का. साथ ही साथ आपको हाउसिंग अकोमोडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर. तो यानी आरबीआई आपको वहाँ पर हेल्प करती है. आपको एचआरए मिलता है 15% ऑफ द बेसिक पे अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दी जा रही है तो. ठीक है, ये आ गया. देन आपके पास नेक्स्ट आता है कि आरबीआई ग्रेड बी. अब मैं जैसे बोल रही थी कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनकर तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, हम अपने लिए आगे ग्रोथ क्यों नहीं देखेंगे. दैट इज समथिंग विच एवरी एस्पिरेंट वुड लुक फॉरवर्ड टू. सो वहाँ पर अपने पास क्या है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास ना जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका नॉर्मली 2 years का होता है और वो एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 4. ऐसा होता नहीं है नॉर्मली. तो यहाँ पर आपके पास ना करियर ग्रोथ के लिए आपके पास ये टाइम पीरियड होता है. फर्स्ट जो आपकी प्रमोशन है उसमें ज़्यादा टाइम है, उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है फॉर गिविंग एनी अदर फर्दर एग्जामिनेशन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर जब हम इसका देखते हैं, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ग्रेड बी आपका यहाँ पर आ जाता है. यू स्टार्ट फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी, देन जीएम, देन आपके पास आता है सीजीएम, देन प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर एंड देन गवर्नर. सो बेसिकली आपके पास ये सारी ऑप्शन यहाँ पर दिखती है. तो आरबीआई ग्रेड बी जो है, ग्रेड बी की शुरुआत आप जैसे अगर आप ग्रेड बी की बात करते हैं सो ए बी सी डी ई एंड एफ. तो आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इसके ग्रेड एफ तक की जॉब के लिए तो आराम से अपने प्रमोशन एग्जाम्स दे देकर उसमें आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो होता है इट इज़ सब्जेक्टेड टू द परफॉर्मेंस एंड द अदर सिनेरियोज. बट अदरवाइज आप जितने इंटरनल एग्जामिनेशंस और अपने जो बेसिक टेन्योर्स आपके एक्सपीरियंस से क्लियर करते जाते हैं उतनी जल्दी आप आरबीआई ग्रेड बी की ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर और आगे चलते जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी हायरार्की. अब बारी आती है जो मैं आपको बता रही थी कि पहले जो आपकी प्रमोशन है, फर्स्ट प्रमोशन में टाइम ज़्यादा है, उसके बाद आपकी जो प्रमोशन है वो स्लोली एंड स्टडीली आपके डिफरेंट वे से होती है. जो फर्स्ट प्रमोशन आप एग्जाम दे सकते हैं वो 7 years बाद आप दे सकते हैं. यानी ग्रेड बी से आप ग्रेड सी पर जाने का सोच रहे हैं तो आपको 7 साल के लिए इंतजार करना होगा. यू हैव टू वेट टिल दैट पर्टिकुलर 7th year is over. So let's talk about that. If anybody is applying for RBI grade B and he is 23 years old right now, so जब तक 7 years की वेट के बाद at the age of 30 he can apply for grade C. ठीक है, उसके बाद अब वो ग्रेड बी से ग्रेड सी पर आएगा. उसके बाद में हर 5 years के बाद बाय 35 ही कैन अप्लाई फॉर डी, बाय 40 ही कैन अप्लाई फॉर ग्रेड ई एंड देन आपके पास 40-45 के रेंज में यू कैन गेट टू द एरिया ऑफ आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रेड एफ तक पहुंच जाते हैं. मतलब आपके पास कितना ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है बिफोर यू विल बी डन विद योर टाइम टेन्योर एज एन ऑफिसर इन आरबीआई. तब तक आपके पास इमेंस ग्रोथ का आपका वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है. प्लस आप मॉनेटरी वैल्यू वाइज जाए या जॉब सिक्योरिटी वाइज जाए, एवरीथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इज अवेलेबल इन दिस जॉब प्रोफाइल. बट देन अगेन इफ देर इज समथिंग जो इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है उसके साथ में जुड़ जाती हैं बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल. आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन है उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए देखिए कितनी चीज़ें जुड़ती हैं. देन सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अब हमें पता होना चाहिए कि हमने जॉब तो देख ली कि जॉब क्या है, कैसे करना है, बट अब बात आती है इस जॉब प्रोफाइल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. Okay, the eligibility criteria is anybody
हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन, सबसे पहले पॉइंट आया, एम आई एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन? यू विल बी एलिजिबल इफ यू आर समवन जो, अब याद रखेगा, जो 21 ईयर्स का हो चुका है. इफ यू हैव टर्न्ड 21 बट यू आर लेस देन 30, ये चीज याद रखनी है कि जो लेस देन 30 है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी. ठीक है, तो जनरल के लिए इट इज 21 to 30 years of age, और relaxations is definitely there, but that relaxation is only for the categories there. Then relaxations में जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती है फॉर एमफिल एंड पीएचडी एस्पिरेंट्स. उनके लिए जो जिनके पास एमफिल या पीएचडी की क्वालिफिकेशन है वो 32 and 34 ईयर की एज तक ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट. एससीज एंड एसटीज के लिए वहां पर 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, यानी 30 के बाद दे कैन गिव द एग्जामिनेशन टिल द एज ऑफ 35. ओबीसीज के लिए इट इज फॉर 3 इयर्स, एंड देन जो एक्स सर्विसमैन है फॉर देम इट इज फॉर 5 इयर्स. दे कैन गिव द एग्जामिनेशन अप टू द एज ऑफ 35. देन बारी आती है प्रमोशन के एवेन्यूज क्या है. अगेन वही बात की थी हमने. सो वहां पर अच्छा, ये प्रमोशन एवेन्यूज नहीं है, ये आपका वही रिलैक्सेशन का ही चल रहा है. यानी आपके पास क्या है, फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस उनके लिए मैक्सिमम 10 इयर्स का आ जाता है अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है. जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनकी, अगर एससीज और पीडब्ल्यूबीडी ये तीनों में या वो फॉलो करते हैं, ये या तो वो एससी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर वो एससी और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके पास रिलैक्सेशन है ऑफ अप टू 15 ईयर्स. सो वहां पर है फॉर ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए आपके पास क्या आता है, उनके लिए 13 इयर्स तक की रिलैक्सेशन इज देयर. देन बारी आ जाती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज बेसिकली वन ऑफ द चैलेंजेस व्हिच एनीबॉडी शुड लुक फॉरवर्ड टू. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, फेज 1 एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर आप देख रहे हैं, फेज 1 के एग्जामिनेशन में जिसने भी पेपर में अपीयर हुए हैं, नॉट फिलिंग अप द फॉर्म, एंड देन इवन इफ यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म एंड यू वर नॉट देयर, यू डिडंट गिव द एग्जामिनेशन, देयर आर डिफरेंट सिनेरियोस. बट एनीबॉडी हु अपीयर्ड इन द फेज 1 6 टाइम्स, उसके बाद वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है. तो आरबीआई ग्रेड बी में जनरल कैटेगरी के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स हैं. नो सच रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ऑन द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससीज, एसटीज, ओबीसीज, पीडब्ल्यूबीडीज और ईडब्ल्यूएस. तो उनके लिए ऐसा नहीं है, वो लोगों के लिए कोई अटेम्प्ट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट जनरल कैटेगरी के लिए रिस्ट्रिक्शन है 6 अटेम्प्ट्स का. यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू योर अटेम्प्ट, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा. देन कम्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. पिछले साल से उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में एक बदलाव भी लाए थे, तो हमें वो भी जानना जरूरी है. लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑफिसर्स ऑफ ग्रेड बी जब हम बात करते हैं, उनका जनरल में क्या जाता है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल. देखिए, ग्रेजुएशन आपकी कौन सी होनी चाहिए, 60% अबव आपके मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर. जो पर्टिकुलर पर्सन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉलो करते हैं, एससीज, एसटीज, पीडब्ल्यूबीडीज, उनके लिए जो कैटेगरी है उनके लिए 50% है, जो जनरल है उनके लिए 60% है. ग्रेड बी ऑफिसर की पोजीशन के लिए जनरल जो है इसकी, ठीक है. और उसके लिए जो अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका 50% या 60% नहीं बन रहा है, अगर ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसने उसके बाद पोस्ट ग्रेड भी किए, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. जैसे और जरूरी नहीं कि इन दोनों में चाहिए, अगर आपका यहाँ पर स्कोर नहीं बन रहा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको स्कोर बनाना होगा मिनिमम 55% फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आरबीआई ग्रेड भी आपका 55% होना चाहिए. अच्छा, ये कई बार ना एस्पिरेंट्स पूछते होते हैं कि मैम वी आर इन द लास्ट ईयर्स, कैन वी अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन? टेक्निकली यू कैन नॉट, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन. आपका जो रिजल्ट होता है वो उसमें आपको बताना होता है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनाई जाती है. सो ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले अप्लाई कर दिया एंड यू आर वेस्टिंग वन ऑफ योर अटेम्प्ट्स, बिकॉज इफ यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इट विल बी स्टिल काउंटेड. बिकॉज कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम कुछ भी डालकर एक बार पेपर देकर देख ले, तो वो एक गलत चीज हो जाती है, बिकॉज अटेम्प्ट काउंट हो रहा है आपका. ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए.
ये तो बात हुई इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी या तो आप अपनी ग्रेजुएशन में 60% का स्कोर रखें, इन केस इसमें 60% नहीं हुआ है, इसमें आपकी जो मास्टर्स है उसके अंदर आप 55% का मिनिमम स्कोर रखें। अगर आपका यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है, तो आप 60% के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दे। मतलब दोनों में से जो क्राइटेरिया आपका पूरा हो रहा है ना, किसी भी एक क्राइटेरिया पर आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एसटीज उनके लिए यहाँ पर उनके लिए उन्होंने इसमें भी रिलैक्सेशन रखी है। सो इट इज ऑल्सो देयर, उनके लिए दे हैव टू पास, ठीक है, दे हैव टू बी पास इन ऑल द सेमेस्टर्स एग्रीगेट के हिसाब से। देन अब बारी आती है इसकी जॉब वैकेंसी की। मैम कितनी वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, कितनी सीट्स होती है? अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं किस तरीके से अपना वर्क कर सकता हूँ? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट इवन। अच्छा कि वो ये रहा कि अब वैकेंसीज कब कब आई है, टाइमलाइन क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट विद 2016 में जब ये आया था तो 163 पोस्ट के साथ सिर्फ जनरल वाले आए थे। 2017 आते आते देखिए यहाँ पर ये थोड़ी कम हो गई, ये 145 होगी। 2018 आते आते ये 127 हो गई। 2019 के अंदर ये बढ़ी, ये 156 तक पहुंची। लेकिन उसके बाद 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो 2021 में दे कम अप विद 270 सीट्स एंड देन उसके बाद नियर अबाउट आपका जो पिछली बार का था उसके ऑलमोस्ट डबल के थोड़ा सा कम है। तो 2020 में तो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड, तो 2020 के बाद 2021 के अंदर दे गॉट 270 एंड देन 2022 के अंदर दे केम अप विद 238 सीट्स ओनली फॉर द जनरल। उसके बाद जैसे 2017 ऑनवर्ड्स जो है वो आपको जो ग्रेड बी का ऑफिसर है उसमें वहाँ पर DEPR का भी दिखा, इट वाज 12 अर्लियर, देन इट गेम टू 22, देन उसके बाद वो बढ़कर यहाँ पर पहले 22 तक गया, फिर 19 में इट केम डाउन टू 2020 में ना होने के कारण 2021 में दे केम अप विद 29 सीट्स एंड 22 के अंदर दे केम अप विद 31 सीट्स। सेम थिंग गोस इन 2017, उनके पास पहले ग्रेड बी ऑफिसर के लिए 4 सीट्स थी, देन 18 में वो बढ़कर गई 17, 2019 में इट बिकेम 23, देन इट बिकेम 23 अगेन इन 2021 और अब वो बढ़कर 25 आई 2021 के अंदर। सो लुक एट दिस, आपके पास एक अच्छा नंबर अराउंड 300 के आसपास की आपके पास वैकेंसीज निकलती दिखती है डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी प्लस आपका क्राइटेरिया, आप किस तरह के जॉब प्रोफाइल की तरफ देख रहे हैं, RBI ग्रेड बी के ऑफिसर की तरफ। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप इनमें से किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, जब हम RBI ग्रेड बी की बात करते हैं विद दिस पर्टिकुलर सेशन, एक बार थोड़े से डाउट्स भी क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कई बार एस्पिरेंट्स आस्क कि मैम पढ़ना कब से शुरू करें? मतलब देख लिया, आप बता तो रहे हो सब चीज़ें, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट हम पढ़ना कब से शुरू करें? आइडली अगर आप किसी भी RBI ग्रेड बी के ऑफिसर से बात करते हैं, दे नॉर्मली से दैट वी हैव स्पेंट अराउंड मिनिमम 6 months ऑन आवर प्रिपरेशन एंड आई हैव हर्ड वन पर्टिकुलर पर्सन, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैड अ वर्ड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो शी वाज अ लेडी एंड उन्होंने बताया था दैट शी हैड बीन स्पेंडिंग, शी ऑल्सो हैड अ किड, तो वो रात को 9 बजे पढ़ना शुरू करते थे, शी वुड स्टडी टिल मे बी 1 और उसके बाद मॉर्निंग में शील वेक अप अगेन अर्ली एंड देन जाने से पहले भी अराउंड 6 to 8 के बीच में इन द मॉर्निंग शी वुड स्टडी अगेन एंड एट 8 AM शील स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। उनको ऑफिस जाना होता था, शी वॉज वर्किंग समवेयर एज वेल, सो बीइंग अ वर्किंग लेडी शी यूज्ड टू कम एट मे बी 6:30 or 7, देन शी यूज्ड टू स्टडी लेट एट नाइट। तो आप बोल सकते हैं कि कम से कम 3 से 5 घंटे वो हर दिन दे रहे थे फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 6 months इन ऑर्डर टू बिकम एन RBI ग्रेड बी ऑफिसर एंड शी मेड इट। सो आप देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। डोंट गो बाय द नंबर्स, द नंबर्स इज जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से आपको प्लान करना है या पढ़ना है। कभी ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छा दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट हु क्लियर्ड द एग्जामिनेशन ही वाज स्पेंडिंग 9 hours, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ टाइम पीरियड ही वाज गिविंग टू हिज स्टडीज ना। इफ ही वाज गिविंग 9 hours, व्हाट वाज ही डूइंग इन दोज 9 hours इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपका कैलिबर होगा और उनका कैलिबर एक अलग वे से डिफाइन होगा। So everybody who is looking forward to these examinations, they have their own ways of working. So this is just an illustration for you guys, not an exhaustive thing कि ये रहा 5-hour journey होना चाहिए, 6 months में आपकी preparation पूरी हो जाएगी और you are good to go। ऐसा नहीं होता। That ready to just go with it is something where जहाँ पर आपको work करना होगा, you'll have to find your own path, right?
चलिए, ये तो हमने वैकेंसीज की बात की। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बारी आती है मैम एग्जाम पैटर्न क्या है। अच्छा, इतना कुछ आपने बताया, ल्यूक्रेटिव सैलरी है, जॉब प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है, हमारे पास जॉब में ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होऊंगा कि मुझे इस पेपर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। नंबर 1, इसमें आपके पास एक फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फिर होता है इसका इंटरव्यू। आरबीआई के इंटरव्यू के जो पैनल्स हैं, उसमें पैनल में काफ़ी लोग होते हैं, जैसे कि इट्स समथिंग जो कि आप बोल सकते हैं कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है ना, बहुत से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यहाँ तक पहुँचते भी हैं बिकॉज वो इतना हाई लेवल प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को भी सी सैट के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो मतलब उनका जो सी सैट होता है उनका क्वालिफाइंग है। हमारे पेपर में तो पिछली बार के 2022 के पेपर की बात करो, उसका फेज 1 जो था उसके अंदर क्वांट का पेपर वाज वेरी टफ, तो वो आपका जो क्वांट वाला पोर्शन था वो टफ था, तो बाकी जो 3 थे दे वर स्टिल बेरेबल। तो आपको देखकर चलना पड़ेगा ना, मतलब अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस, और आप नबार्ड प्रिपेयर कर रहे थे, आप सेबी प्रिपेयर कर रहे थे, या कोई भी और XYZ पेपर प्रिपेयर कर रहे थे, आपको उसके लिए एक बार हट कर रुक कर पहले आरबीआई को समझना होगा। ठीक है, सो आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 जो है, फेज 1 के बाद आपका फेज 2 आता है, और फेज 2 के बाद में आपका आता है फेज 3। जब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की, तो इसकी नोटिफिकेशन निकलने के 1 से 1.5 महीने के अंदर नॉर्मली आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ले जाता है, यानी किसी भी एस्पिरेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो ये एक रियलिटी है कि रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। अब बारी आती है आगे, चलो जरा समझते हैं फेज 1 में क्या होता है। फेज 1 का एग्जामिनेशन एक 120 मिनट्स एग्जामिनेशन, यानी ये 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है। दिस 2 आवर एग्जामिनेशन इज बेस्ड अपॉन व्हाट थिंग्स। नंबर 1, इसमें जीए आता है 80 क्वेश्चंस का, रीजनिंग आती है 60 क्वेश्चंस की। यू कैन सी सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके जीए के होते हैं, देन आपके रीजनिंग के होते हैं, देन आपके इंग्लिश के होते हैं, फिर आपका आता है क्वांट, देन ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी आपके पास में जो मार्क्स का डिवीजन है, हाईएस्ट इज फॉर द जीए, देन इज फॉर रीजनिंग, एंड देन इज फॉर इंग्लिश एंड द क्वांट। सो इस बार का जो क्वांट था, इट वाज क्वाइट टफ, दैट्स एन अपडेट फॉर यू गाइस। पेपर 120 मिनट्स का होगा, और माइंडेड पेपर नॉर्मली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि तो बहुत स्पीड पे चल रहा होता है, इसके लिए प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू द टेस्ट सीरीज एज वेल फॉर अ बेटर नॉलेज अबाउट द पेपर, वो रिक्वायर्ड है। अब बारी आती है फेज 2 कैसा दिखता है इसका। फेज 2 के अंदर हमारे पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन आपके पास आता है पेपर 2 में इंग्लिश राइटिंग, और आपके पास आता है पेपर 3 आपके पास आता है एफएम का। देखिए ये है फेज 2। फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, और उसके बाद में आपके पास एक क्वेश्चन पेपर अलग सा, मतलब उसके ना आपके पास 6 क्वेश्चन, और में से आपको कोई 3 आपको करने होते हैं, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो है आपका डिस्क्रिप्टिव का एरिया। यानी इस पेपर के अंदर आपको पेन पेपर नहीं चाहिए, यू नीड टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, बिकॉज ये वाला पेपर एक ऑनलाइन पेपर काउंट होता है। ठीक है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। फेज 1 जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है वो तो ऑनलाइन है ही है, लेकिन उस साथ में जो सेकंड पेपर है यानी फेज 2 है वो भी ऑनलाइन है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कई बार एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता, वो पूछते भी नहीं है, लेकिन यू शुड डेफिनेटली बी नोइंग अबाउट दिस कि अगर आप फेज 1 आप क्लियर कर लेते हो तो फेज 2 के लिए आपके पास कितना समय होता है। आई वुड से कि वो 30 डेज के आसपास का आपके पास टाइम होता है पिछले पेपर होने के बाद। यानी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आपके पास टाइम नहीं है उतना, यू डोंट हैव इनफ टाइम कि मैम फेज 1 क्लियर हो गया, फेज 1 का रिजल्ट आ गया, 10 दिन उसमें जाएंगे, 7 से 8 दिन तो आपके मिनिमम जाएंगे। सो आपका 22-23 दिन आपके पास इफेक्टिवली बचते हैं टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड फेज, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। थिंक अबाउट द लेवल ऑफ लर्निंग जो आपको देखने वाली रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर, इट्स जस्ट वे टू मच। और उसके हिसाब से ना बहुत बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, फेज 1 क्लियर करने के बाद बैठ जाते हो, कहते हैं सोचा नहीं था फेज 1 निकलेगा, अब निकल तो गया लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि मैं फेज 2 के लिए पढूं कैसे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव के लिए पहले पढ़ना शुरू नहीं किया होता, तो पता ही होता है कि हमें दिक्कत आ रही हो। तो इसका एक बहुत मेजर नुकसान होता है दैट यू क्लियर द फेज 1 बट यू नॉट एबल टू मेक द फेज 2 बिकॉज यू डिडंट हैव द लॉन्ग टर्म लर्निंग। आपने अपने लिए उस लॉन्ग टर्म जर्नी को कवर करने का सोचा ही नहीं है, राइट, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग।
देन अब आपके पास क्या है, जब फेज 2 के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपके पास 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। जो आपका पेपर 1 है उसके अंदर क्या होगा, आपका प्रपोज टाइम है 30 मिनट्स आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और 90 मिनट्स आपको मिलते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास क्या होगा, ये ईएसआई का है और आपके पास एक रहता है एफएम का। दोनों के पेपर में सिमिलरिटी क्या है, 50% मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। जो आपका 30 मिनट्स के लिए क्वेश्चन मिलता है उसमें 1 और 2 मार्कर मिलता है। आइडियली आप बोल सकते हो कि 30 क्वेश्चन के आसपास का आपके पास रहेगा, ये 50 मार्क्स का होता है। और उसके अलावा इसमें 1 और 2 मार्कर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और बहुत अब ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत हो गए, वो इस बार था भी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आया था वो केस स्टडी बेस्ड काफी था। और आपके पास जो 90 मिनट्स में आपको करने होते हैं, इनमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अब हम फाइनेंस और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऊपर में 15 मार्कर के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर से भी आपको कोई 2 करने हैं। फिर एक 10 मार्कर का सेक्शन होता है, 3 में से आपको इधर भी कोई 2 करने हैं और इधर भी कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। यानी 15 इंटू 2 क्वेश्चंस कर देंगे तो 30 मार्क्स एक के हो गए और 20 मार्क्स दूसरे के हो गए। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 50 हो गए। 50 मार्क्स इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो आपको उतने आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना है और आपको प्रिपेयर करना है वो इसके डिस्क्रिप्टिव का एक और पेपर आएगा। यानी इन दोनों पेपर्स में तो आपके पास मिक्स आता है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जो आपका ये इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है। सो ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके पास होगा एक एसे, देन एक आपके पास होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक आपके पास आती है प्रेसी, और वो आपका टोटल होगा 100 मार्क्स का पेपर। ये जो फेज 2 है इट कैरीज 300 मार्क्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। द इंटरव्यू कैरीज 75 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपका मेरिट बनता है तो वो 375 में से आपका क्लब्ड कितने मार्क्स है वो आपको बताना। तो द फाइनल मार्क्स इज 375। इसमें से जो आपका स्कोर है वो आपको आरबीआई की ग्रेड बी ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करने में मदद करता है। वो आपकी सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, वॉट एवर यू अर्न आउट ऑफ 375। डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यू नीड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड एट द सेम टाइम विजिलेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, कि पता होना चाहिए मुझे इतना तो स्कोर करना ही करना है। अब बारी आती है कट ऑफ्स की। लेट्स लुक एट दैट, द कट ऑफ्स टाइमलाइन फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी की कट ऑफ कितनी है, चलिए जरा उसको भी जान लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी की जो कट ऑफ गई है जनरल अवेयर, ये है आपका फेज 1 का। इंडिविजुअली मैं हर एग्जामिनेशन का ना आपके साथ 2021 का डिस्कस कर रही हूँ। 2022 की डिटेल्स अभी उतनी इन डेप्थ नहीं आई हुई है, तो वंस दे आर आउट तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल, बट लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द 2021 फर्स्ट। 2021 के अंदर हमारे पास क्या था, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो आपको यहाँ पर है। कट ऑफ्स कैसे गई है, जीए के अंदर आपके पास 16 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80। ईडब्ल्यूएस के लिए इट वाज आल्सो 16, ओबीसीज के लिए इट वाज 12, जबकि एससी से इट वाज 10.25, एससीज के लिए भी सेम एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी सेम। रीजनिंग में इट वाज 12 and 12 for general and EWS. OBCs के लिए it was 9, then STs के लिए it was 7.75, then STs के लिए again 7.75 and person with disabilities के लिए भी 7.75. Then English language के अंदर it was 6 and 6 for general and EWS. OBCs के लिए it was 4.50, SCs के लिए it was 3.75, SCs के लिए 3.75 and 3.75 for the person with disabilities. This was 80, this was 60, this was 30 and 30. क्वांट के लिए भी इट वाज 6 and 6, पिछली बार का जो 2022 का क्वांट वाला एरिया था इट वाज मोर डिफिकल्ट देन द अदर 3 सेक्शंस। सो ये था, उसमें ईडब्ल्यूएस में इट वाज 6 एंड देन ओबीसीज के लिए इट वाज 4.5, एससीज के लिए इट वाज 3.75, एसटीज के लिए इट वाज 3.75 अगेन एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए इट वाज 3.75। ये था 2021 का फेज 1। जब हम फेज 2 की बात करते हैं उसमें जनरल का स्कोर वाज 66.75, देन जो कट ऑफ मार्क्स आपके 2019 में थे और उसको देखिए जनरल की कैटेगरी में वो कैसे रहा है। 2017 में इट वाज
52, 18 में it was 105.75, then 2019 में it was 122 and then it was 66.75 in 2021. then हमारे पास आ जाता है EWS के अंदर क्या रहा है, उनके कट ऑफ के मार्क्स अगर हम 2019 के देखते हैं, it was basically 122 and then it was 66.75. there's a drastic decrease जो 2021 के अंदर आपको देखने को मिलता है. OBCs के लिए it was 47 in 2019 and 2017, 18 में it was 95.75, then 19 में it was 115.50 और 21 के अंदर it was 63.75. 2020 का ऐसे नहीं है क्योंकि 2020 के अंदर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो पाया था. 2017 it was again 35 for SCs in terms of the examination phase 2, then it was 91.75 for the area of 2018 phase 2 का आपके पास आ गया, then it was 108 और पिछली बार आता 53.50, then STs के लिए it was 35 in 17, then 91.75 आया 18 में, 2019 में it was 108 और 2021 के अंदर it was 52.75. पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए it was 2017 में 35 and then 91.75, 108 and 52.75. anybody who is looking forward to the phase 2, ये उनके अच्छा ये आपके पास उसका कट ऑफ गया है for the phase 2. उसके बाद आपके पास आ जाता है फेज 2 का प्लस आपके पास ना, अच्छा ये वाला आपका टोटल था, दिस वाज फॉर द फेज 1 ओनली, ये वाला फेज 1 वाला ही है, ये फेज 2 वाला नहीं है. सो ये उसी को डिफाइन किया गया था, ये आपका सेक्शनल कट ऑफ था और ये आपका कंप्लीट कट ऑफ है. ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट कट ऑफ है, ये फेज 1 ही है, ये आपका कंप्लीट कट ऑफ दिया हुआ था आउट ऑफ 200. ठीक है, वो आपका सेक्शनल कट ऑफ था बिकॉज इस पेपर के अंदर सेक्शनल कट ऑफ्स भी आते हैं और आपके पूरे के पूरे कट ऑफ भी निकालने होते हैं. तो वो आपका फेज 1 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 200 मार्क्स में से होता है. तो वो पहले जो पहला ग्राफ आपने देखा वो सेक्शनल कट ऑफ का है और ये जो सेकेंड वाला है ये आपका कंप्लीट 200 में से कितना स्कोर आता है ये उसको बताता है. और उसके बाद फेज 2 का एग्जामिनेशन है उसका कैसे गया था, फेज 2 आपका 300 मार्क्स का होता है, 75 का आपका इंटरव्यू होता है. सो ये वाला एरिया है आपका फेज 2 का, आउट ऑफ 300 मार्क्स क्या स्कोर आ रहा है. देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इट वाज 166.75, EWS के इट वाज 187.75, SCs के लिए 166.75, STs के लिए 167.75, then OBCs के was 187.75 out of 300 and जनरल के it was 187.75. ये रहा था 2021 का. और 2021 का आपका जो टोटल कट ऑफ गया है फॉर द एरिया जहाँ पर उनका 375 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, यानी 300 का हमारा फेज 2 और 75 का हमारा द नेक्स्ट एरिया. अब उसको देखें तो PWBD के लिए इट वाज 226, उसके बाद आपका EWS का इज 218.25, STs के लिए इट वाज 205.25, SCs के लिए इट वाज 212.25, OBCs के लिए इट वाज 241.25 एंड देन जनरल कैटेगरी इट वाज 252.25. सो ये हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स फर्दर. यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो चूज हुए थे उनकी आपकी जो कट ऑफ थी ये गई है. अब बारी आती है फेज 1 के. हमने भी फेज 1 के बारे में बात की ना कि फेज 1 के हमने कट ऑफ डिस्कस किया, तो उसमें क्या क्या है. फेज 1 के अंदर क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GA है. तो अगर हम इसकी बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, GA की है. उसके बाद किसकी है, दिस इज नंबर 1, फिर रीजनिंग की है, फिर ये दोनों इक्वल है, मतलब रैंक 3 पे दोनों इकट्ठे आ जाते हैं 30 मार्क्स के साथ में. ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सबसे मेजर पोर्शन कौन कवर करता है, वो करता है GA. तो जब हम GA की बात करते हैं तो GA में क्या क्या आएगा. GA में हमारे पास स्टैटिक आता है. स्टैटिक GA जो होती है वो रफली 10 to 15 मार्क्स के आपके पास रहती है. करंट GA जो होती है उसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टैटिक वन. वो करंट जो है 50 to 60 की रहती है. बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं. पिछली बार के पेपर में NABARD के ऊपर क्वेश्चन थे, आपके पास में RBI के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, SEBI के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. रेगुलेटरी बॉडीज में फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड आपके पास क्वेश्चन रहते हैं. रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स रहती हैं आपके पास 15 मार्क्स की. और अदर करंट्स होते हैं अलाइड आपके पास आता है. रिजर्व्स क्या हैं, आपके रिजर्वॉयर्स कहाँ हैं, हाइड्रोसेक्सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, GI टैग्स हैं, और आपके पास में अवार्ड फंक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, रेजिग्नेशंस हैं, जो भी वो पर्टिकुलर एरिया आपके पास कवर होता है. इसके अंदर बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, अवार्ड्स जिन्होंने जो रिसीव किए लेटेस्ट, और कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनका सारा आपके पास यहाँ पर मिलता है अदर करंट में. ठीक है.
अब बारी आती है, ज़रा एक बार थोड़ा ध्यान से ये भी समझिए कि पेपर के अंदर हमें कौन कौन से एरियाज को कवर करना है फॉर द क्वांट के लिए आपको कवर करना है। देखिए कई बार एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं मैम इसका लेवल क्या रहता है, क्लरिकल के अकॉर्डिंग है या मेंस के अकॉर्डिंग है। इसके पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये आपके ना जो पीओ के मेंस वाला है ना, आप उस लेवल की प्रिपरेशन ज़रूर रखिए जब आप क्वांट और रीजनिंग को देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का लेवल तो इसका ऑटोमेटिकली अच्छा है ही, बट इनके लिए आप इसको देख सकते हैं। अब बारी आती है क्वांट के एग्जामिनेशन की। जब हम बात करते हैं क्वांट के पोर्शन की, उसमें आपको क्या क्या करना है, रेशोज पढ़ने हैं, परसेंटेजेस पढ़नी है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, DI आपका पेपर में ये इसका ना 5 के क्वेश्चंस का सेट आता है। चलो पहले एक बार ना जो जो 5 के सेट्स में आते हैं वो करते हैं। ये आपका DI आपका उसमें रहता है, क्वाड के आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस का सेट आ जाता है। देन आपके पास इनके तो रहते ही रहते हैं, नंबर सीरीज के भी 3 to 5 क्वेश्चंस का आपके पास एक सेट रहता है। ठीक है, इनके तो डेफिनेटली आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस के सेट में ही आते हैं। यानी अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए, क्या अच्छी चीज बन जाती है, बिकॉज आपको 3 to 5 क्वेश्चंस का सेट अपने आप मिलता है। देन मिक्सेस एंड एलिगेशन है, अप्रोक्सीमेशंस है, प्रोबेबिलिटी है, इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज में से भी सेट बन जाते हैं क्वेश्चंस में ना, आपके पास मल्टीपल सेट्स में आते हैं। देन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, स्टॉक एंड शेयर्स है, ये सारे आपके पास अवेलेबल है इन द एरिया ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। Now comes the next one, that is रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में भी अगेन आपके पास सेट्स में क्वेश्चन आते हैं। 30 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आ रहे हैं, क्यों आपका चांस टू क्लियर द एग्जामिनेशन नहीं बढ़ेगा? गिव मी वन पर्टिकुलर रीजन। अगर आपने प्रिपरेशन ही उस तरह की सॉर्टेड वे से रखी तो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेलियर इज डेफिनेटली मिटिगेटेड और रिड्यूस्ड टू एन एक्सटेंट, राइट। सो अपने पास अगला क्या जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, साइलॉजिज्म है, डायरेक्शंस है। कोडिंग डिकोडिंग में से आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस का सेट आ जाता है। देन आपके पास रैंकिंग एंड ऑर्डर में से आपके पास 5 क्वेश्चंस का सेट आता है। सीटिंग अरेंजमेंट में से 5 क्वेश्चंस का सेट आता है। डेटा सफिशिएंसी आपके पास अगेन इसमें से भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये आपके पास करने वाले होते हैं। पजल्स आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज आता है, मशीन आउटपुट आता है, ब्लड रिलेशंस में से आइडली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। डायरेक्शंस में से भी आपके पास ऐसे ही मल्टीपल कई बार सेट्स वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए कितने सारे एरिया, जैसे मतलब 30 में से अगर 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से भी चले, कुछ जगहों पर आपने अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लिया तो 10 मार्क्स तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा तरीके से चलना पड़ेगा, बिकॉज इनकी प्रैक्टिस ये नहीं है कि बोलना आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू सी कि अच्छा इनकी तो प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन आपको इन डेप्थ प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की बात होती है। तभी मैंने कहा कि अगर आप RBI प्रिपेयर करें तो पीपल आर प्रिपेयरिंग इट इन सच अ वे कि वो ये बोले कि मैं RBI ही प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं RBI ही प्रिपेयर कर रही हूँ, बोलकर वो 6 महीने उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो उनका स्टैंडर्ड किस लेवल तक बढ़ जाता है, बिकॉज वो पेपर ओरिएंटेड होकर जनरल नहीं पढ़ रहे, वो उसी पेपर को देखकर, उसी के PYQ देखकर, उसी का स्टैंडर्ड देखकर, उसी का लेवल देखकर पेपर दे रहे हैं। तो क्यों नहीं वो अपनी चीजें करेंगे। So one point is reasoning, the next point is English. इंग्लिश में आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है। इसका भी सेट में क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इकट्ठे। देन आपके पास आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसका भी आपके पास 5 क्वेश्चंस का सेट आता है। एरर डिटेक्शन, इसका भी 5 क्वेश्चन में सेट आता है। यानी आपके पास 15 का तो क्वेश्चंस का यहीं से सेट बन के आता है। एंटोनिम्स कैन बी देयर, सिनोनिम्स कैन बी देयर, ईडियम्स आ जाते हैं, देन क्लोज टेस्ट कैन बी देयर। तो आपके पास मल्टीपल एरियाज हैं व्हेन यू वर्क अपॉन दीज एरियाज ऑफ इंग्लिश। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे और समझते हैं। अब बारी आती है फेज 2 की। फेज 1 तो खत्म हो गया, मैंने इंग्लिश की बात की, मैंने रीजनिंग की बात की, मैंने क्वांट की बात की और मैंने बात की GA की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एरिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, हमारे पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है उसमें एक ऐसे आता है, एक प्रेसी आती है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। आपके पास में इनका जो प्रेसी आएगी तो उसका सूटेबल हेडिंग भी आपको देनी होती है। और ये वाला पेपर भी ये उनके इंटरफेस पर होता है, ये ऑनलाइन पेपर है। आपके पास इसके लिए मिलते हैं 90 मिनट्स।
ठीक है, उतना ध्यान रखना है। और ये 100 मार्क्स का पेपर है। थिंक अबाउट इट, इंग्लिश अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको मार्क्स में एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट द पॉइंट इज कि अगर वैसे भी देखा जाए ना, इट्स वियर्ड बट ट्रूथ कि ना स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्क्स नहीं आ जाते हैं अगर आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। ऑन एन एवरेज होते हैं जिनकी फ्लुएंसी भी है ना, वो भी उसी ब्रैकेट में, ये 60s 50s के ब्रैकेट में ही रह जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन। और प्लस आरबीआई ग्रेड बी का पेपर दे रहे हो ना, तो इसका इंग्लिश भी ना जेनरिक और ऐसा होता है कि जहाँ पर ना आप करंट अफेयर्स में जो भी आपने जीए में पढ़ा था ना, आपके फेज 1 में वही फायदा आप उठा सकते हो फेज 2 में। जहाँ जहाँ पर आप डाल सकते हो, रिपोर्ट्स के बारे में डालो, फिगर्स के बारे में डालो, सर्विस के बारे में बताओ, झूठ नहीं, गलत नहीं, बट द ट्रूथ। If you know about those facts and figures, explain them in detail in terms of the essay and make more marks from these areas. So you can score more if you are being very vigilant about what you are writing in terms of the English descriptive. ये देख कर करने वाली चीज़ें। फिर बारी आ जाती है आपकी, अब आपका सेकंड जो इसका फेज 2 के अंदर एरिया कवर किया जाता है, यानी आपके पास क्या आता है, ईएसआई का एग्जामिनेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का अगेन ए फुल फ्लेज्ड एग्जामिनेशन, 90 मिनट्स का आपका पेपर आता है डिस्क्रिप्टिव का। देन आपके पास आपका 30 मिनट्स का एरिया आता है आपके 50 आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपके पास वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास उतना टाइम आता है, मतलब आपको देख कर चलना है। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी होता है, 2 मार्कर भी होता है, तो आपके पास वो 50 मार्क्स का है ये एरिया। एक्चुअली ये 50 मार्क्स का है। मिलते आपको इसके लिए लिमिटेड टाइम है, यानी 30 मिनट्स आपको इसके लिए मिलते हैं, तो आपको देखकर चलना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बचा हुआ टाइम है वो आपके लिए मिलता है 90 मिनट्स का। वो आपको किसके लिए मिलता है, वो आपको मिलता है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। अब इसमें अपने पास क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, फिर आती है इंडियन इकोनॉमी, फिर हमारे पास आता है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास निकल कर आता है द ग्लोबलाइजेशन। अब बारी आती है, अब जब हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं उसमें सबसे पहला आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें अपना नेशनल इनकम आपको पढ़ना है, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स पढ़ने हैं। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ चीज़ें जो गांठ बांध के रखने वाली हैं। दिस एग्जामिनेशन इज समथिंग जहाँ पर ना रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स को आपको बहुत थॉरली पढ़ना है। एवरी रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स विच इज रेलिवेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन शेल बी टेकन केयर बाय यू, नॉट ओनली फॉर द फेज 1 बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर फेज 2 एज वेल, बिकॉज यू कैन रेफर दोज डेटा और द स्टैटिस्टिक्स in the phase 1 as well as in phase 2, but not only in terms of the English descriptive but also in the area of the economic and social issues examination. So let's be very clear about that fact कि आपने एक चीज़ उस लेवल पर पढ़ी तो आपको उसका फ़ायदा आपको दूसरे लेवल पर भी दिखता है। यानी अपने पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंटल इशूज़, ये पढ़ने आपको पढ़ना होता है ग्रोथ के लिए। ओके, इज देयर एनीथिंग दैट आई मिस्ड? नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सबसे पहला है। फिर आपके पास बारी आती है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी का आपको बेस पढ़ना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है हमारी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसीज क्या है, चेंजेस पढ़ने हैं। मतलब आप फेज 1 के लिए प्रिपेयर करते करते फेज 2 के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, जो हमारे रिफॉर्म्स सिर्फ 1991 बदले हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, LPG पॉलिसी जो आई थी 1991 में, उसके पीछे के रीजंस क्या रहे, क्या रिपरक्यूशंस रहे, इन्फ्लुएंस क्या निकलता है उसका, वो आपको पढ़ना होगा इसके लिए। देन प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। पेपर के अंदर ना कम से कम 5 क्वेश्चन, जो अगर हम बात करते हैं ना जीए की, वो जीए के अंदर आपको यूनियन बजट और जो सर्वे है इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। So if you're preparing for RBI grade B ना, तो one thing that you need to be very clear is आपको बजट पढ़ना ही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें से आपको क्वेश्चंस दिखते ही है, आइडली आपको 3 to 5 क्वेश्चंस बजट में से दिखते हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सर्वे से मिल जाते हैं। यानी आपके पास 5 क्वेश्चंस फ्रॉम जीए इज नॉर्मली देयर फ्रॉम दिस एरिया, प्लस वो आपको फेज 2 के लिए भी पढ़ना है। यानी आपके लिए बजट और यूनियन सर्वे को पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सिर्फ फेज एग्जामिनेशन के लिए, मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए भी। देन अपना इंडियन मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ना, उसके लिंकेजेस देखना। देन रोल ऑफ द बैंक्स एंड रिजर्व्स इन इंडिया, इसका बिना पेपर के अंदर जब आप जीए का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, बैंकिंग में से बहुत कुछ आता है, तो आपको बैंकिंग वाले एरिया वहाँ पढ़ रहे हो, फिर उसकी एक इन डेप्थ स्टडी आपको यहाँ पर करने को मिल जाती है। फिर हमारे पास आता है पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज इन इंडिया, ये सब चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, अब इसका लेटेस्ट वाला वर्जन भी आपको पढ़ना है।
आपको स्टैटिस्टिक्स तो पता ही होना चाहिए, लेकिन जो लेटेस्ट चीज़ें इनमें हो रही हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन क्यों आई इंडिया में, उसका रिपरकशंस क्या आ रहे हैं। अब इंडिया के साथ में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, IMF, WTO वो सब भी जुड़ जाते हैं, तो हमें उनके साथ के जो हमारे पैक्स चल रहे हैं उनके साथ की समिट्स वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आपके पास रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ वो आपको कवर करके चलना है। देन आपके पास आता है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टी कल्चरलिज्म है हमारे यहाँ, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, अर्बनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कवर करना है, माइग्रेशन है, जेंडर इश्यूज है, बहुत सी चीज़ें। अब जैसे सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर जो आपके सेंसस है वो आपको पढ़ के चलना है, SECC ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारे कंट्री के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ आ रही है, सो उसका क्या इम्पैक्ट रह रहा है वो आपको देख कर चल सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस का एरिया आपको पढ़ना है। देन अब सोशल सेक्टर्स इन इंडिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन है। अगेन हेल्थ और एजुकेशन देख रहे हो, मिनिस्ट्रीज़ को ज़रूर एक बार रिव्यू करके चले ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन कौन सी स्कीम्स अभी लेटेस्ट चल रही है, कोई स्कीम जो अभी एक्सटेंड हुई है या कोई स्कीम है जो अभी लॉन्च हुई है या कोई स्कीम अभी रिमूव की गई है, उसकी जगह कोई और स्कीम्स आई हैं, उतना आपको पढ़कर चलना पड़ेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमारे पास बारी आ जाती है द नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन जो है, दैट इज़ द एरिया ऑफ जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस और मैनेजमेंट के साथ में आपके पास, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो आपके पास जुड़ते हैं 3 टॉपिक्स, यानी फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स और जनरल टॉपिक्स। प्लस पॉइंट यही आपको पढ़ना है सेबी के अंदर भी, ठीक है। अब जो पीछे हमने ESI पढ़ा ना वही आपको नाबार्ड में भी दिख जाता है, यानी अगर आप इसका प्रिपरेशन करो सेम नहीं है, ट्रस्ट में ऑन दैट नोट, सेम नहीं है, आपको सिमिलैरिटी मिलेगी लेकिन सारा का सारा सेम नहीं मिलेगा। नाबार्ड का एरिया थोड़ा सा इससे अलग चलता है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि जो आप इसमें पढ़ रहे हैं वो आपको नाबार्ड के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। जो RBI है इसका जो फाइनेंस का एरिया है वो मैच करता है सेबी ग्रेड A के साथ भी। देन सबसे पहला आता है फाइनेंशियल सिस्टम्स। हमारे पास फेज 2 में सबसे पहला है फाइनेंशियल सिस्टम्स, RBI ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ना है। RBI की बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या है, क्या करता है, और अपनी उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है। अगेन बैंकिंग सिस्टम आपको GA में आपने पढ़ा है, उसका आपने उसका करंट पढ़ा है, उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड कंसर्न्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, SIDBI, EXIM, NABARD, NHB, सारे चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, आपको ये सब पढ़ना है। देन इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 में आया था और इंडिया का उसमें रिस्पॉन्स क्या रहा है, दिस वाज देयर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर टू। मतलब इसको लेकर ना इंडिया के रिस्पॉन्स को लेकर डिस्क्रिप्टिव में इसका क्वेश्चन भी आ रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर RBI की अपनी फंक्शंस वगैरह क्या है वो आपको बहुत बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ दिखता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या आया, फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़नी है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है आपके पास में, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी एक्सेट्रा आपको करने हैं। फंक्शंस, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या आई हैं वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आया, रीसेंट डेवलपमेंट्स आपने GA में भी तो कवर करनी ही है। अब इसके जनरल टॉपिक्स में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर है। देन हमारे पास बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स है और इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको इसमें कवर करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स कवर करना है, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP हमको पढ़ के चलना है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, इनफैक्ट ना इसमें से ना ऐसे भी बन जाता है, तो आपको ये भी देख कर चलना है। इनके ऐसे राइटिंग ऐसा नहीं होता कि जेनरिक इंग्लिश टॉपिक्स हैं, इनके ऐसे राइटिंग भी कुछ ऐसी होती है जो ना मतलब समहाउ दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज समथिंग जो कहने को आपको लगता है कि जेनरिक इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन वो होता RBI के यही ESI और FM बेस्ड टॉपिक्स ही आपको एसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलते हैं। सेम थिंग गोज विद सेबी, सेम थिंग गोज विद नाबार्ड। इनके भी जो एसेज होते हैं वो नहीं होते कि वो जेनरिक इंग्लिश है, वो इन्हीं के साथ का मिक्सचर होता है कहीं ना कहीं। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे यूज़ होती है बैंकिंग सेक्टर में, उसका E-गवर्नेंस का रोल क्या है, इशूज़ ऑफ करप्शन और इनएफिशिएंसी क्या है वो इसमें कवर करना है। यूनियन बजट हमको पढ़ना है, कंसेप्ट अप्रोच, उसके ब्रॉड ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। देन इन्फ्लेशन की बात की जाती है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, MCQs बहुत बार बन जाते हैं इसमें। देन डेफिनेशन है, ट्रेंड्स है, एस्टिमेट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं और रेमेडीज हैं, WPI, CPI वो आपको पढ़ के चलना है। कंपोनेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है। फिनटेक इसके अंदर आपको कवर करना है, एक और टॉपिक। फिनटेक में से अगेन आपके ना MCQs के साथ में एसेस भी बन जाते हैं, वो भी देखने वाला टॉपिक है।
देन अपने पास अगला आता है फेज 2 मैनेजमेंट में अपने पास क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ओबी, ये आपका मैनेजमेंट वाला पोर्शन आ गया। ये आपका मैच करता है सेबी के साथ में। सेबी में भी आपको इसका कुछ मेजर एरिया कवर होता दिखता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इसके कुछ टॉपिक्स है जो सेबी में भी है, वो इस एग्जामिनेशन में भी हैं, वो आई थिंक आपके PFRDA के एग्जामिनेशन में, NPS में भी कुछ जगहों पर आपको इसका सिलेबस मैच करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो अगर आप मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं तो कई मल्टीपल एग्जामिनेशंस को आप टारगेट कर पाएंगे अगर आप ये एक एग्जाम कर रहे हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड आई एम टेलिंग यू इज कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन जिनका ना प्रोफेशनल नॉलेज एक तरह से आपको बिल्डअप करने की बात करें, तो ये नॉलेज जो आप एक बार इतनी मेहनत करके गेन कर रहे हो, सिर्फ वो यहाँ काम नहीं आती, वो मल्टीपल एरियाज में काम आती है। उसका एक मोटिवेशन तो बनता ही है आपको बताना कि आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। देन फंडामेंटल्स पढ़ना है हमको, वो भी समझना है, फिर और क्या करें हम, साथ में हमें करना है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसकी एवोल्यूशन, उसका थॉट प्रोसेस, किसने बनाई थी मैनेजमेंट, उसके पीछे का रीजन क्या था, साइंटिफिक, एडमिन, HR, देन सिस्टम अप्रोच, मैनेजमेंट फंक्शंस, उसके रोल्स, नज थ्योरी, ये सब हमको पढ़ के चलना है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज अपने पास आता है मैनेजमेंट के अंदर मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ वो भी क्या है, पर्सनालिटी, उसके मीनिंग, उसके फैक्टर्स, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल्स, ये आपको सिर्फ इस एग्जामिनेशन में दिखेंगे, ये आपको सेबी में नहीं दिखेगा, ये आपको नबार्ड में नहीं दिखेगा, ना ही आपको बाकी एग्जाम में दिखेगा। ये टॉपिक जो है वो इसमें ही एडेड है। बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल्स जो आपके पास कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है, परसेप्शन है, कंसेप्ट, उसके कंसेप्चुअल एरर्स, मोटिवेशन आपको मिलता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस, उसकी जो थ्योरीज है वो आपको करनी है, एल्डर्फर की ERG थ्योरी, मैक्लेलेंस की थ्योरी, आपको ना इसमें स्पेसिफिक थ्योरीज बताई हैं। वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन दैट एस्पिरेंट्स आस्क इज मैम कि अगर मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ RBI ग्रेड बी के लिए, तो मैनेजमेंट अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बट क्या मैं सारी थ्योरीज पढूं? मोटिवेशन की तो बहुत सारी थ्योरीज है, सारी पढूं क्या? नहीं, सारा नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको सिलेबस को फॉलो करना है, हमेशा याद रखना, स्टिक टू द सिलेबस फर्स्ट। पहले सिलेबस फिनिश ऑफ करते हैं, उसके बाद ना सिलेबस के MCQ करते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस का डिस्क्रिप्टिव करते हैं। उसके बाद जब हम सिलेबस को लेकर कंफर्म हो चुके हैं कि मैंने पढ़ लिया 2-3 बार, उसको रिवाइज किया है मैंने, उसको प्रॉपर्ली उसको देखा है, उसके बाद आई विल डू समथिंग एल्स, तब तक नहीं। इट्स नॉट गुड समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, सो ये आपको देखना है। एडम की इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, काफ़ी सारी थ्योरीज इसमें कवर होती हैं, वो सारी थ्योरीज को आपको कवर करते हुए चलना है। फिर मैनेजमेंट में ये एक और टॉपिक है, मोटिवेशन और लीडरशिप, ऐसा टॉपिक है जो आपको सेबी के एग्जामिनेशन में भी दिखता है। लीडरशिप में आपके पास आता है कंटेंट थ्योरीज, यानी ट्राइट, बिहेवियर, कंटिजेंसी, करिज्मेटिक, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ये सारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको इसमें कवर्ड दिखती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इसमें कवर्ड मिलता है, कंसेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके डायमेंशंस, उसके एनालिसिस आपको मिलता है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपको मिलता है, जो हारी विंडो इसमें कवर किया जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये सारा OB है। अब इसके बाद ना लीडरशिप के बाद जो आपको बाकी चीज़ें दिख रही है ना, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक है। कर्ट ल्यूविन की थ्योरी और मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है, OB का चेंज यानी ऑर्गेनाइजेशन का चेंज, उसका कंसेप्ट, उसका कर्ट ल्यूविन की थ्योरी आपको यहाँ पे दिख रही है। देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज, इनके मॉडल्स स्पेसिफाइड हैं। देखिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जो इन्होंने मॉडल स्पेसिफाई किए हैं, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या तरीका होना चाहिए कि जो इसमें लिखे हैं पहले आपको वो खत्म करना है। थ्योरीज ऑफ प्लान्ड चेंज, ल्यूविन का चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च, पॉजिटिव मॉडल, ये सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। Now comes the next point, management में ethics at workplace and corporate governance. Next point is this, ethics का आपको topic cover करना है. This is not covered there in other subjects. ये आपको इसी के point of view से cover करना है. Meaning of ethics क्या है, उसका ethical problems क्या होती हैं, then theories आपके पास क्या है, utilitarianism, then weighing social cost, benefits, rights and duties, justice, fairness, ethics of care, integrating utility, rights, जस्टिस एंड केयरिंग, कोई ऑल्टरनेटिव अगर इसके साथ में होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स के, वर्च्यूज, टेलोजिकल थ्योरी, ईगोइज्म, देन रिलेटिविज्म थ्योरी, मॉरल इश्यूज क्या होते हैं, कंप्लायंसेस क्या है, फाइनेंस, HRM, मार्केटिंग, एथिकल प्रिंसिपल्स, मल्टीपल बिजनेसेस पे ये किस तरीके से काम करता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आगे चले थोड़ा सा और फिर अपने पास OB के अंदर और क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसके एथिक्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एथिक्स में रहती हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने फाइनेंस में भी पढ़ा है अभी, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी दिखता है।
उसके फैक्टर्स क्या आ जाते हैं। कम्युनिकेशन का एक पूरा टॉपिक अलग से आपको दिख जाता है। कम्युनिकेशन इज देयर इन दिस एग्जामिनेशन प्लस सेबी में भी आता है। तो कम्युनिकेशन, उसके स्टेप्स आ गए, कम्युनिकेशन के चैनल्स, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड और लेटरल कम्युनिकेशन। उन्होंने कम्युनिकेशन के टॉपिक के भी सब टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यानी सबसे पहली चीज़, प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस का और उसको सामने रखिए और आपको देखना है कि सिलेबस में से आपने कितना पढ़ लिया, उसको टिक करते चलिए मैंने कि ये मैंने पढ़ लिया। दैट्स हाउ दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजी हिट्स, हाँ कि मैं पढ़ रही हूँ, वो एक फीलिंग होती है। दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज हैड। मेरा ट्रैकर तैयार होता है और वो ट्रैकर ना हर दिन जब आपको दिखता है ना कितना पढ़ा है, कितने टिक लगे हैं, जितने टिक लगते जाते हैं साइकोलॉजिकली इंसान कहता है इतना तो पढ़ लिया मैंने इतना। वो और ना जब नहीं पढ़ा होता ना, उसमें एक टिक ना लगा ना, तो वो एक अपने आप को एक गिल्ट नहीं होती, वो फील होता है कि क्वेश्चंस आज टिक नहीं लगा कोई, और वो टिक ना लगना फिर तंग करता है। तो आप रात को भी बैठकर अपना पढ़ाई करते हैं। दैट पैशन इज समथिंग दैट इज इन यू। वो पैशन आपको खुद को दिखाना पड़ता है। कई बार ना अपने साथ उतना ज़्यादा रूड होकर चलना पड़ता है कि खुद को बोलना पड़ता है दिस इज नॉट व्हाट यू डूइंग। आई वांट कि आज मेरे को ट्रैकर पे एक टिक लगा वो होना चाहिए, वो मेरी अपनी चॉइस है, दैट इज व्हाट आई वांट टू लुक फॉरवर्ड टू। वो एक सोच अपनी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। वो ट्रैकर अपने आप को शर्म दिलवाने के और खुद को ही पैशन को और क्लियर करने के लिए वो हर दिन का रिमाइंडर है that yes this is where you want to be and this is what you want। तो वहाँ पर आपका ये ज़रूर होना चाहिए। जितना ये क्लियर रहेगा उतना आप क्लियर रहेंगे, बिकॉज आपका गोल आपके सामने होगा। अच्छा, बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन देयर आर सर्टन थिंग्स जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ कि मैम फेज़ 1 अलग प्रिपेयर करें ना, फेज़ 2 जब आएगा तब पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया था इसी वीडियो के दौरान कि एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम फेज़ 1 प्रिपेयर करते हैं, फेज़ 2 देखा जाएगा, अगर क्लियर होगा तभी पढ़ेंगे ना, इतनी मेहनत क्यों करें अभी। ये सोच काफ़ी हद तक फेलियर का रिस्पॉन्सिबल होती है, बिकॉज पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अगला पेपर जो है ना, सामने सिर्फ उसका प्रीलिम दिख रहा है, लेकिन प्रीलिम निकालने के बाद हम क्या करेंगे। इफ़ आई रीच टू दैट पोजिशन जहाँ पर मेरे पास सक्सेस से मैं एक लेटर पीछे हूँ, मैंने उसका प्लान क्यों नहीं किया। वाई हैवेंट आई डिसाइडेड व्हेन आई रीच दैट पर्टिकुलर अल्टीमेट एरिया, तब मैंने क्या करना है, वहाँ तक की तैयारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे इंटरव्यू तक के अपनी तैयारी को सॉर्ट करके चलना है। दैट मीन्स जब आप फेज़ 1 प्रिपेयर करने बैठ रहे हैं तो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 ये हमेशा साथ में प्रिपेयर होना चाहिए। जब पेपर से एक महीना पहले रह जाएगा तब फेज़ 2 छोड़ दीजिए और फेज़ 1 पे आ जाइए, क्योंकि लेट्स बी प्रैक्टिकल, पहले फेज़ 1 निकालना पड़ेगा फिर फेज़ 2 निकलेगा, यानी तब वो सॉर्ट होना ज़रूरी लगता है। लेकिन अभी इस टाइम पे जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यू कैन नॉट बी लाइक कि मैम फेज़ 1 ही पढ़ते हैं हम लोग, 6 महीने फेज़ 1 पढ़ेंगे, उस एक महीने में चमत्कार हो जाएगा कुछ कि मैं फेज़ 2 आ जाएगा। दैट डजंट मेक सेंस, इट्स टू अनरियलिस्टिक फॉर एनी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा होगा, इजंट इट। दैट मीन्स यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फेज़ 1 बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फेज़ 2 व्हाइल यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। निकालिए दोनों का सिलेबस, उसको देखिए, PYQ उसको समझिए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जब तक आप उस लेवल की सॉर्टिंग करके नहीं चल रहे हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपकी जो वर्किंग एलिमेंट है वो उतना सॉर्टेड रहे। अच्छा, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, लेट्स अंडरस्टैंड अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, समटाइम्स एवरी एस्पिरेंट नीड्स टू लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि अच्छा प्रिपरेशन तो चल रही है मैम, लेकिन अपना प्रिपरेशन के साथ में आई वॉन्ट टू नीड सम गाइडेंस, आई एम इन नीड ऑफ गाइडेंस। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी प्रिपरेशन में यू वांट टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, तो आप ये कर सकते हैं कि अड्डा 247 की वेबसाइट या आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं। आपको डेली क्विजेस दिखते हैं, अगर आप अपने डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली क्विजेस दिखते हैं। डेली क्विजेस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को ना ट्रैक कर पाते हैं। पता है, लेट्स बी फैक्ट अबाउट इट, हम लोग सब पढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वर्किंग के साथ में ना वो मोटिवेशन का है। जब हम लोग घर पर बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, हम अगर ट्यूशन जाते थे, बचपन में हम ट्यूशन जाते थे, बहुत से लोगों ने ट्यूशन लगाए थे, वहाँ पर क्या होता था, पेरेंट्स हमको भेजते क्यों थे, क्योंकि वहाँ पर ट्यूशन टीचर हर दिन पूछा था होमवर्क हुआ, प्रैक्टिस हुई, टेस्ट दो, वो चलता रहता था। हमें कोई ना कोई डराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि मेरे को पढ़ना है, कोई बैठा था। अब कोई नहीं, अब मुझे खुद ही पढ़ना और मुझे खुद को शर्म दिलाने की ओहो इतना पढ़ा है, कहाँ जा रही हूँ मैं, वो चीज़ मुझे खुद करनी है। तो उस तरीके से आपको कभी कभी एक स्टडी प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टेस्ट सीरीज याद दिलाने के लिए होते हैं कि वो हिट करता है कि ओ ये मेरी वीकनेस है, उतना तो हमको रिक्वायर्ड चाहिए ही। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू कैन लुक फॉरवर्ड एंड लुक एट आवर वेबसाइट और द ऐप, वट एवर सूट्स यू।
चलिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ. यू जस्ट हैव टू गो टू द एरिया ऑफ यहाँ पर ना लर्निंग टुडे लर्निंग टुमारो. ये रहा आपके पास लीडिंग टुमारो का एरिया. ये अडर 24/7 की वेबसाइट है. अब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर ना आपके पास यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पर नीचे आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स का एरिया दिख जाता है. बट एक काम करते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आई एम गोना राइट RBI. ठीक है, RBI ग्रेड बी की जब हम बात करते हैं सो यहाँ पर आपके पास आ जाता है RBI ग्रेड बी. आप ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज बैंक महापैक प्लस. ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है जो आप RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप NABARD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप SEBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप SIDBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर देखिए हर एस्पिरेंट हमेशा सिर्फ RBI की प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा, वो मल्टीपल पेपर्स दे रहा होगा. तभी मैंने आपसे बात करते हुए भी RBI और SEBI और NABARD के अंदर जहाँ पर सिमिलरिटीज आ रही थी मैंने उनकी भी बात की. बिकॉज कभी भी हम सिर्फ एक पेपर नहीं दे रहे होते, हम मल्टीपल पेपर्स को टारगेट करके चल रहे होते हैं. बिकॉज हम सबको कहीं ना कहीं होता है कि वी वांट अ बेटर जॉब. तो वो जब अपने पास स्कोप दिख रहा है तो हम उस स्कोप के ऊपर फाइट करते रहते हैं, राइट. सो अगर आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बैंक महापैक प्लस को, जिसमें आप इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही जगह पर, जहां पर आपको मोर देन 12,000 वीडियोस अवेलेबल है, अपडेटेड कंटेंट है, जिसमें आपके पास वैलिडिटी है और साथ साथ ना आपकी प्रिपरेशन के अंदर आप 6 मंथ्स 12 मंथ्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं. एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास डबल वैलिडिटी का ऑफर भी आता है. आप एक पर्टिकुलर वैलिडिटी को डबल कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के ऊपर, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की. देन चलिए, अब हमने ये चीज़ बात की है तो अब इसके अंदर आपके पास लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इसके अंदर आपके पास मॉक टेस्ट है, मॉक वीडियो सॉल्यूशंस हैं, फिर आपके पास रिवीजन पैचेस अवेलेबल होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जब आप लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, फिर आपके पास ई बुक्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके पास होती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू क्लासेस फॉर द इंटरव्यू एरिया एज वेल. तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंटरव्यू प्रिपरेशन और वेबिनार्स विद द एक्सपर्ट्स, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है एक पैक के अंदर, जहाँ पर आप पूरा RBI देख सकते हैं. एक टाइम पे जब आप RBI की प्रिपरेशन करें तो RBI की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं. एक अनलिमिटेड एरिया जो आपके लिए खुल जाता है. ई बुक्स आपको मिल जाती हैं कि कहीं पर आपको पढ़ना है तो आपको उसके लिए दिक्कत ना आए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ, और बाय नाउ पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यू कैन यूज द कूपन कोड Y538. ठीक है, इससे कर दीजिए अप्लाई और देयर तो जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं Y538, अभी आपको इसमें 77% का डिस्काउंट दिख रहा है. अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं आपकी ऐप के अंदर तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट अगर आप ऐप से करते हैं तो 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, एडिशनल 1% डिस्काउंट मिल जाता है. तो जितनी जल्दी हो सके इसको देखिए ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा. अगर मैं इसकी बात करूँ सो इस पर्टिकुलर पेपर की, आप कोई भी पेपर अगर देख रहे हैं, अगर आपने SEBI खोल लिया, आपने RBI खोल लिया, कोई भी, अगर मान लीजिए हम RBI की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो RBI का स्टडी प्लान आपको दिखता है कि आपको टाइम टेबल कि किस समय कौन सी क्लास होगी. आप तब तक उसी क्लास को देखें, उसको रिवीजन करें और उसके साथ में चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में ना एक मोटिवेशन रहती है कि कोई तो मेरे साथ में मेरी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है. वो ग्रुप स्टडी वाली चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद अकेले प्रिपेयर कर रहा हूँ. मेरे पास एक मोटिवेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना हुआ है और मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना है, तो वो आपको स्ट्रेंथन अप करता है. सो ये आप देख सकते हैं, यू कैन यूज द कोड Y538 एंड दैट विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 77% एंड यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू. बट बिफोर आई एंड दिस सेशन लेट मी जस्ट शो यू कि आपके पास क्या क्या इसमें अवेलेबिलिटी रहती है, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट. इसमें ये सारे आपको एग्जाम कवर होते देते हैं. IBPS तो इसमें है ही, IBPS RRB भी है PO, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, देन RBI असिस्टेंट आपको इसमें कवर होता हुआ दिखता है. देन आपके पास रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स, NIACL, NHB, LIC और GIC, ये आपके पास सारे मिलते हैं. फिर आपका आता है जो इस प्लस के अंदर, क्योंकि हमने महापैक प्लस का है तो इसमें आपको और क्या मिलता है, वो सारे एग्जामिनेशन उसमें कवर हो ही रहे थे, लेकिन हमारे एग्जाम में RBI ये रहा, NABARD नीचे, SEBI, SIDBI, कोई भी SO वाले एग्जामिनेशन आते हैं वो भी इसमें कवर होते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक महापैक प्लस के थ्रू आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी एंड यू कैन ऑल्सो कवर अदर एग्जामिनेशंस इफ़ यू वुड लाइक टू. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि डेडिकेशन मांगता है एग्जामिनेशन. वो डेडिकेशन, वो टाइम, वो कंसिस्टेंसी, वो आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी. आपका स्मार्ट वर्क, गाइडेंस, मेंटरशिप, हर चीज़ आपके साथ में काम करते हैं, लेकिन soul is again your self study and your consistency and hard work that you are putting in, grinding yourself.
ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन, राइट? सो उतनी प्रिपरेशन के समय उतना आपका सॉर्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी, देन बी वेरी क्लियर अबाउट दैट फैक्ट एंड प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अपनी तरफ से हर दिन का अपना टाइम टेबल सॉर्ट करके चलिए, अपने हर दिन के टॉपिक्स को बांट कर चलिए. एंड रिमेंबर, प्रिपेयर अ प्लानर एंड लुक एट इट एवरी सिंगल डे. एवरी सिंगल मॉर्निंग यू शुड सी कि मैं ट्रैकर में कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ. वो शर्म अपने आप को चाहिए, वो ट्रैकर हमको हर दिन का चाहिए. वो हर दिन की मोटिवेशन भी वही है, एक ट्रैकर भी वही है, हमको फील करवाने वाला भी वही है. तो वो अपने लिए क्लियर ज़रूर रखिए कि मेरा ये सिलेबस है, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. एंड एवरी सिंगल डे यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द ड्रीम दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एन RBI ग्रेड बी ऑफिसर. एंड विद दिस ड्रीम यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो एंड चेस द ड्रीम. So go ahead and keep working hard, keep learning and keep growing. And for any further query, ADA 247 की ऐप पर जाएं और इसको जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं. दिस इज अ बैंक महापैक प्लस RBI ग्रेड बी के स्पेसिफिक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे. सो देन दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स. देन मेक योर बेस्ट एफर्ट्स. थैंक यू.